everyone. Greetings from International Management Institute, New Delhi. We are Team Abhiyan and we had conducted a financial literacy camp in Dhatir village of Palwal district, Haryana. We are first starting with the pictures demonstrating the preparations that we did for the campaign. We prepared list of requirements, the timeline and the itinerary for the event. For the street play that was shown to the audience as a part of the campaign, few scripts were prepared with the help of the videos that have already been made in this area. Here is the video which will show a mixture of elements consisting of rehearsal of play, micro-planning of event, and last but not the least, the fun that our team had. We plan to start with a street play depicting a common man who was indebted and had a lot of liabilities, which is when he realized that he should have saved money and invested it effectively. Then we planned to conduct focus group discussion with women and men to teach them few basic financial facts. We saw few audio visuals which we planned to show to everyone, especially youths, to propagate financial literacy. The whole idea was to keep them engaged in one thing or the other to teach them word facts. We visited the village before the campaign to promote it and to establish good relations with the families over there. We did door-to-door campaigns and interacted with 6 to 7 major influential families. We pasted the RBI posters in places which had high visibility. It helped us a lot in terms of attracting people for the day and for making us familiar to them. We did arrangements for the logistics like carpet, chairs, projector, sound, etc. for the campaign day. From the interactions we had with the localites, we realized some common misconceptions. For instance, some older women thought that the money they put in bank would be lost once they are not capable anymore to operate the account. We designed our content to counter these misconceptions so that we could bring about a positive change. हम यहाँ पे आज वित्तीय शिक्षा देने आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगे। नाटक 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 आग है, नाटक पानी, नाटक बचपन और जवानी, नाटक काका थैया, आ जाओ भैया नाटक देखे भैया। ओ राम भाई, ओ श्याम भाई, ओ मगन भाई, ओ गगन भाई, नाटक 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 नाटक, ओ पैंट वाले, ओ सूट वाले, ओ टाई वाले, ओ बूट वाले, नाटक 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 नाटक। अरे भगवान, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? अरे सब खराब हो गया। बताओ तो सही क्या हुआ?
बारिश ने सारी खेती खराब कर दी। हाय राम, क्या होगा हमारा अब? सारी खेती खराब हो गई, हम कर्जदार रह गए, हमारा सारा पैसा सूद कर ले गया और हमारी सारी जमीन ले गया, हमारी भैंस ले गया, अब कुछ कहीं के ना रहे हम। कैसे करेंगे इनकी ब्याह और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अब हम? अरे यही चिंता तो सताए जाती है, बहन की शादी करनी है और हाँ, आज छोटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें, कहीं के नहीं रह गए अब तो हम। आप सब्र रखो, आप मैं कह रहा हूँ आप सब्र रखो। अरे रामू, दरवाजा खोल, कहाँ चुप के बैठा है? अरे मालिक कैसे है मालिक? अरे मेरे पैसे कब लौट आएगा? कितने दिन हो गए? तुझे 2 लाख रुपए मैंने उधार दिया था। आज बहन की शादी के लिए देख रहे हैं मालिक। अरे मास्टर जी, आप इससे करा रहे हैं अपने बेटे की शादी, इसके बाद खुद तो कुछ है नहीं मालिक, ये आपको क्या देगा? नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं है मास्टर जी। क्या हो रहा है? मुझे नहीं करनी शादी। नहीं मास्टर जी, नहीं मास्टर जी, नहीं। हे मालिक। अरे रामू, 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, कल मैं आऊंगा, अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं हुए तो तू देख लियो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नहीं मालिक, थोड़े दिन जा रहा हूँ मैं। और साहूकार जी, आज चौपाल में कैसे? अरे बहुत परेशान हूँ, ये गांव वाले मुझसे पैसे ले लेते हैं, पैसा इनसे चुकाया नहीं जाता। क्या हो गया, बताओ तो। अरे रामू को मैंने 2 लाख रुपए उधार दिया था। 2 लाख? आज 1 साल हो गया है, एक पैसा नहीं लौटाया उसने। अरे साहूकार जी, मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, ऐसे झमेलों में मत पड़िए आप अपने पैसे सुरक्षित रखते नहीं है, देखा आज ये दिन देखना पड़ गया आपको। अरे क्या करूँ, बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ मैं इन लोगों से, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बिन मौसम बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, अगर आपने पैसे बैंक में रखे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको। अच्छा ऐसा है? हाँ, पैसा सुरक्षित रहता है बैंक में। चलो सोचता हूँ मैं फिर इस बारे में। अच्छा चलिए मिलते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। लगता है रामू के घर जाना ही पड़ेगा। अरे भगवान, सब खराब हो गया आज तो। अरे रामू, भाभी जी नमस्ते, क्या हो गया? नमस्ते हरी भैया, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या हो गया? बैठिए। आप बताइए क्या हो गया? सब खराब हो गया हरी भैया, हमारी जमीन चली गई, हमारी फसल बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया रामू? साहूकार हमारी भैंस ले गया, आज वो मास्टर जी हमारी बेटी को बिहाने आए थे, वो वापस चले गए, कहीं के नहीं रहे हम। अरे तुम्हारी फसल कहीं के नहीं रहे, फसल थी ना तुम्हारी, तो बिन मौसम बरसात के सारी फसल खराब हो गई। ठीक है, शांत हो जाओ। देखो मैं पहले ही कहता था तुमसे, पैसे खर्च करना कम करो, बचाओ पैसे, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ मानते थे? नहीं मास्टर जी, नहीं, मैंने देखा था 6 दिन पहले उस छत पे तुम्हारी क्या सब चल रहा था, इतने पैसे उड़ रहे थे। मैंने बोला था ऐसे व्यर्थ का खर्चा मत किया करो, पैसे बचाना सीखो, तुम मानते नहीं हो। देखा आज ये दिन देखना पड़ गया। तुम्हें पता है सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं, सरकार का फसल बीमा की योजना नहीं निकाली है, उसमें 7,000 करोड़ सरकार ने डाले हैं। तुम्हें पता है सारी फसल अगर कुछ भी बर्बाद होता है, सारा पैसा सरकार चुकाती है। तुम्हें पता है तुम्हारी भैंस जो साहूकार जी ले गए हैं, उसका भी बीमा होता है। ये अगर बीमा तुमने कराया होता, आज ये दिन न देखना पड़ता तुम्हें। बीमा भी होता है? हाँ, और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसके ये बीमा होता है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का एक और सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष सिर्फ 12 रुपए भरने पड़ते हैं और तुम्हें 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। और बता दो और क्या क्या हम कर सकते हैं? ये सारी बीमा योजना सरकार सबको बताती है और कुछ ही दिनों में ये सारी बीमा योजना लागू होंगी। तो ये सारी बीमा योजना में पैसा निवेश करिए और अपना भविष्य सुरक्षित करिए। बट हम तो कर्जे में पूरे डूब गए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पाई जोड़ के सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री का सुरक्षा बीमा योजना, उसमें सिर्फ 1 साल में सिर्फ 12 रुपए जोड़ने हैं तुम्हें। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि हमारे जैसा और किसी से गलती ना हो। हरी भैया के हम शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें इतनी सीख दी। हरी भैया क्या कहते हैं? आप अब से पैसा निवेश करिए। बिल्कुल सही। पैसे बचाओ, पैसे निवेश करो, व्यर्थ के खर्चे मत करो। नाटक 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 नाटक
दुखी भैया, क्या हाल है? अरे दुखी क्यों हो? सुखी भैया क्या बताएं, बहन की शादी आने वाली है और 2 लाख रुपया उसमें खर्चा लग रहा है। 1.5 लाख मैंने किसी तरीके से जमा कर लिया है, 50,000 मुझे कम पड़ रहा है। अब आप ही बताएं मैं कहाँ से लाऊं बाकी का 50,000? साहूकार से मैं पहले ही कर्जे में इतना डूबा हुआ हूँ और पैसा मैं उससे ले नहीं सकता। अब ये बाकी का 50,000 मुझे परेशान किए जा रहा है। पर 2 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। इतना खर्चा कहाँ कर रहे हो भैया? अरे सुखी भैया, आप कैसे ये बोल रहे हैं? मोहल्ले में लोगों की शादी होती है तो 3-4 लाख तो लग ही जाता है। शर्मा जी का बेटा, चौधरी जी की बेटी, 3-4 लाख तो उन लोगों ने भी खर्चा किया था। 50 से 60,000 तो व्यंजनों पे लग जाता है। बाकी का 50-60 हजार मिठाई और गहनों पे, 1 से 1.5 लाख रुपया साज सजावट पे लग जाता है। अब आप ही बताएं, 3 लाख रुपए क्या ज्यादा है क्या? भैया आप एक चीज बताएं, आप अपनी बहन की शादी लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं या अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या अपनी बहन की खुशी के लिए कर रहे हैं? आप खुद देखिए, अगर आप पैसे कुछ कम खर्चे में भी एक अच्छी शादी कर सकते हैं और अच्छी शादी करने की वजह से आप ना केवल कम खर्चे में करने से आप बचत भी करेंगे और अपनी बहन को खुश भी देख सकेंगे। सही कह रहे हैं आप, इस बारे में मैं सोचता हूँ। देखिए आप बचत कैसे कर सकते हैं, अगर आप 50,000 व्यंजन पे रख रहे हैं तो उसमें आप 10-11 पकवान रखना चाहेंगे। उसमें से अगर आप 3-4 कम भी कर दें तब भी आपका खाना बहुत अच्छा होगा। और आप जो साज सजावट पे आप कपड़े बना रहे हैं, आपको 1-2 जोड़े से ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस पर भी बहुत खर्चा बच सकता है। इसकी वजह से आप ना केवल जो 50,000 आप साहूकार से कर्जा लेने की सोच रहे हैं वो भी बचेगा, आप और भी बचा के बाकी जो पिछला कर्ज है वो भी आप चुका सकते हैं। ठीक है, मैं सोचूंगा फिर इस बारे में, और आपकी जो सिखाई गई मुझे सीख है उसको भी मैं आगे अपनी जिंदगी में उसको लेके चलूंगा अपने साथ। आप देखिए सबके सब इसमें अपनी वित्तीय योजना सब देख के इसमें आप अपने हर मांग के जो आपके पास है ये आप खोलिए एक बार। पेज नंबर 7 पे, पन्ना नंबर 7 खोलिए। इसमें देखिए माँ 1 से, इसमें आप अपनी आय और खर्चे हर महीने के इसमें आप रख सकते हैं। इसमें लिखिए दैनिक खर्चे जैसे 10 रुपए हुआ तो 10 रुपए हम ऐसे सोच लेंगे कि उसको लिखना है, पर हमको यहाँ 10 रुपए भी लिखना है ताकि हमें पाई का हिसाब रहे कि कितना खर्च है। 10 रुपए अगर घर में आ रहे हैं तो उस 10 रुपए को भी इसमें लिखिए ताकि आपको सही हिसाब रहे कि घर में कितना पैसा आ रहा है, घर से कितना पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद में तो छोटी हो गई दैनिक खर्चे के बारे में। अगर आपको बहुत लंबी सोच रखनी है कि अगर आपको घर में बेटी की शादी आने वाली है या बच्चों की पढ़ाई करानी आगे की 5-6 सालों में, या अगर आपके घर में अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके लिए भी इसमें प्लानिंग है। अगर आपको करीब 50,000 रुपए चाहिए आने वाले 5 साल का 300 रुपए, मतलब साल का 3600 रुपए, और 3600 रुपया की कीमत बहुत होती है अगर आप 1 साल के बाद देखो। तो वही है कि आप अगर छोटी छोटी कीमत भी बचाने लगते हो तो वो कितना ज्यादा जरूरत हो जाता है, कितना बड़ा बन जाता है बहुत सालों के बाद। इसकी दुकान खोली है? बस 2 महीने पहले अचार पापड़ का दुकान खोला था, उसी में थोड़ा टाइम निकल जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। मेरा सारा समय ही खाना बनाने में, कपड़े धोने में निकल जाता है। तुम्हें कैसे इतना समय मिल जाता है? बस जब खेत जाते हैं ये काम पे और बच्चे निकल जाते हैं स्कूल, थोड़ा टाइम बचता है तो सोचा कि उसी में कुछ कारोबार शुरू कर ले। तुम्हें किस चीज में रुचि है ये सोचो। रुचि? सिलाई बुनाई का काम थोड़ा बहुत जानती हूँ, तुम तो जानती ही हो। गाँव वाले जब कुछ फटा हुआ कपड़ा लेकर आते हैं तो उसी को सिल देती हूँ। तो इसी में क्यों नहीं कारोबार शुरू कर लेती तुम अपना? इसमें मैं कारोबार शुरू कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बहुत थक गया आज तो, बहुत थक गया। मैं रोटी लगाती हूँ। बहुत थक गया रे, सब बहुत थक गया। रोटी लाओ। आपको पता है घर पर कौन आया था? कौन आया? मेरी दोस्त सीता आई थी। अच्छी बात बताइए उसने मुझे। क्या बताया ऐसा? उसने अभी अपना एक अचार पापड़ का नया कारोबार शुरू किया है। अरे वाह, खरीदे कुछ पापड़ लाओ तो।
हाँ लाती हूँ। पर आपको पता है उस कारोबार से वो कुछ आमदनी जमा कर लेती है। अच्छा। और उस आमदनी से वो अपने पति की भी थोड़ी सी मदद कर देती है और बच्चों की भी मदद कर देती है। अच्छा रोटी तो लाओ जरा। तो मैं सोच रही थी मैं भी कुछ ऐसा शुरू करूँ। मैं चलता हूँ अब, लेकिन एक बात कहता जाऊंगा, पैसे कहाँ से लाओगी ये सब करने का? पर पैसे जमा करने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। मुन्नी के पापा तो मुझे बस 100 रुपए देते हैं। मैंने कहा वो 100 रुपए राशन में बच्चों की पढ़ाई में निकल जाता है। तो तुम उस 100 रुपए में से कुछ 10 रुपए 2 रुपए रोज जोड़ जाड़ के अगर पाई पाई करके एक संदेश जो आपने सीखा हो, इसे कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ बताओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। ये नीचे इसके एक ढक्कन है, ये खुल जाएगा और इसके अंदर से आप पैसे निकाल सकते हैं और इधर से डाल सकते हैं। उसमें 2 लाख तक का हमें बीमा मिलता है। तो मैंने एक रकम कही थी कि साल का हमें उसमें कितना डालना पड़ता है? बचत के बारे में बताइए, बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी हम बचत करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, पढ़ाई भी कर सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। फसल है हमारी, बगैर मौसम अब जो चल रहा मौसम खराब हो जाती है, इसका अगर हम बीमा कराएं तो हमें इसका मुनाफा भी मिलता है। हम ना कि किसी दूसरे के ऊपर रहकर निर्भर होंगे। अगर हमारा बीमा होता है पूरे पैसे में, उसका हमें ज़्यादा मिलेगा। बाद तोड़ोगे, निकलेंगे तो उतने ही पैसे। लेकिन 4 साल पहले प्याज का जो दाम था वो क्या 4 साल के बाद रहता है? नहीं, आज 20 रुपए किलो है तो कल 80 रुपए किलो हो जाता है। लेकिन अगर यही पैसे आप सोचो बैंक में जाके डाल दें तो आपको पता है ना बैंक में पैसे। At the end of the campaign, we went to meet few of the women entrepreneurs of the area. One of them had opened an NGO to teach 10 children. We asked them to encourage financial literacy amongst women so that they can also become a support for their family. We also got many complaints regarding the crop insurance people had with the bank of the area. We went on to talk to the branch manager to ensure that the complaints are being resolved. We had a great learning experience and we look forward to many more such events where we are able to support other people to move forward.